So hello students, in the previous video we are studying about the Young's double slit experiment. On that experiment what we have seen that if there is a monochromatic source of light which is behave as a primary source, generate its light and its light hits into the slits. Clear? Slits is what? Slits are said to be the very small opening present on any plane. तो जब यहाँ स्लिट्स को क्या करता है, ये हिट करता है, तो यहाँ पर बेसिकली पॉइंट सोर्स था, तो कैसा वेव फ्रंट आया होगा इसका, आपका ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हुआ होगा जो किधर की ओर गया होगा, आपका आगे की ओर गया होगा. सो व्हेन द वेव फ्रंट रीचेस एट द स्लिट्स, सिंस द स्लिट्स are at same distance from the primary source, so the wavefront reaching on the slit will be same and the wavefront reach the slits at the बिल्कुल same time. So at the same time there are the infinite medium particles present inside the slit and there is also infinite medium particle present inside the slit. So when the wavefront reaches at S1 and S2, so the medium particles present on slit S1 and medium particle present on slit S2 will behave as a secondary source for the new wavefront from the Huygens principle. So they will generate their own wavelets. इस तरीके से दोनों ने अपनी अपनी एक वेवलेट्स को जनरेट करना क्या कर दिया, इस तरीके का शुरू कर दिया. I have told you that when you are going for the darker side it is said to be your crust and when you dotted side it is said to be your trough. फिर यहाँ पर एक क्रस्ट के बाद एक ट्रफ निकलता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये इस तरह की ढेर सारी चीजें अपन ने क्या की थी, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ की थी. ड्रॉ करने के बाद बेसिकली वी हैव सीन अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन. ये स्क्रीन का जो ये वाला पोर्शन था इट वाज योर सेंट्रल ब्राइट. कैसा था यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर सेंट्रल ब्राइट था. ये सेंट्रल ब्राइट से कुछ एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट D1 मिला. D1 कैसा रीजन था आपका ये, तो D1 इज सेड टू बी योर दैट इज योर फर्स्ट डार्क. क्लियर? फिर इसके बाद क्या मिला यहाँ पर आपको, ये B1 मिला. B1 इज सेड टू बी योर फर्स्ट ब्राइट. क्लियर? फिर ब्राइट के बाद फिर क्या मिला आपका, डार्क मिला, दैट इज सेड टू बी योर सेकेंड डार्क. फिर डार्क के बाद क्या मिला आपको, ब्राइट मिला, दैट इज सेड टू बी योर सेकेंड ब्राइट. ये बात समझ में आ रही. एंड द सेम पैटर्न वाज सीन just below the central bright. Clear? तो in the below the central bright again we have got the above D1 मिला तो below भी D1 मिलेगा. D1 के बाद क्या मिला, B1. फिर B1 के बाद क्या मिला यहाँ पर D2 और D2 के बाद क्या मिला यहाँ पर आपको ये B2 मिला. ये we could ditto same to same pattern are obtained just above the central bright as well as just below the central bright. ये बात समझ में आ रही है. अब ये जो पैटर्न मिला इस पैटर्न के बारे में थोड़ी सी क्या करनी है हमको, एनालिसिस करनी. क्लियर? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम बनाया जाता है वो बार बार इस तरीके से नहीं बनाया जाता है. जब भी अपने को डायग्राम बनाना हो तो अपन किस तरीके से बनाएंगे, पर इसके पहले एक चीज ध्यान से देख लो. ये जो दोनों स्लिट्स हैं इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को किससे नोट किया मैंने, स्मॉल डी से. क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट्स इज योर स्मॉल डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट प्लेन इज हाउ मच, दैट इज योर कैपिटल डी. स्क्रीन एंड स्लिट प्लेन के बीच डिस्टेंस कितनी है आपकी, कैपिटल डी है. And the monochromatic source is generating the light and light has the wave nature. It's mean we are on the wave optics. So the light generated by this primary source have the wavelength how much, that is your lambda. So we are taking the three notations over here. The lambda is the wavelength of the monochromatic source of light. Small d is the distance between slit planes and capital D is the distance between a screen and the slit plane. And small d is your distance between slits. Clear? And the pattern obtained on the screen is said to be a fringe. क्या बोलते हैं पूरे पैटर्न को, फ्रिंज बोलते हैं. What is the name of this one? Central bright fringe, first dark fringe, first bright fringe, second dark fringe, second bright fringe. ये बात समझ में आ रही है. And what is the meaning of dark and central bright? Bright और dark में बस एक छोटा सा डिफरेंस है. When the two waves superimposes to each other, the condition for getting the maximum intensity is how much? That is the when the intensity is the maximum, मैंने बताया था जोन कैसा होगा आपको, ब्राइटर होगा. एंड when the intensity is minimum मैंने क्या बताया था, जोन कैसा होगा आपका यहाँ पर ये डार्कर होगा. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पर क्या ये इसको थोड़ा सा अपन लिखने की कोशिश करते हैं. हाँ, तो आई हैव टोल्ड यू द types of interference in the previous video. There are two types of interference. The first one is said to be your constructive interference and the second one said to be your destructive interference. And I also told you the conditions for interference to be constructive as well as interference to be your destructive. So in the condition we have to write only two things, that is what is the phase difference as well as what is the path difference. So the phase difference for constructive interference is how much, that is your 2n pi. On the same line the path difference is how much, that is your L lambda.
वेयर एन की वैल्यू कहां से कहां तक 0 1 2 3 इस तरीके से है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस इज हाउ मच, दैट इज योर 2n plus 1 into pi एंड डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ जाता है 2n plus 1 into lambda by 2 वेयर n इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर 0 1 and 2 आता है। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कहीं प्राइमरी सोर्स रहा होगा, उससे लाइट गई होगी S1 और S1 के कारण यहाँ पर इस तरीके से बिन रही। क्लियर? तो वेयर द ब्राइटर जोन आर कमिंग इट मींस द इंटरफेरेंस इज हाउ मच, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव, and where the dark fringes are coming it means the how much interference या which interference is going on, that is your destructive interference। and constructive interference में वेव सुपर वेव्स क्या होती हैं आपकी, सुपर इम्पोजेस होती हैं। किस वे में सुपर इम्पोजेस होती हैं? तो इस तरीके से सुपर इम्पोज होती हैं, दे आर क्रस्ट टू क्रस्ट और ड्रॉप टू ड्रॉप सुपर इम्पोजेस, दैट इज योर इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एंड पॉइंट विल बी योर ब्राइटर एंड इंटरफेरेंस विल बी योर कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? और इसमें जो इंटरफेरेंस होता है, जो सुपर पोजिशंस होती हैं दो वेव्स के बीच में, दैट इज विच टाइप ऑफ crust is superimposed with the trough. It means the phase difference is your 180 degree, intensity is your minimum, point is your darker, and the interference type is your destructive interference. Clear? We all know everything. We want to write down what is the phase difference as well as the path difference for center bright. What is the phase difference as well as path difference for your first arc? Clear? So यहाँ पर ये center bright, brighter के लिए we have two formulas एंड डार्कर के लिए भी है टू फार्मूलाज। ये बात समझ में आ रही? तो सेंटर ब्राइट के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये इस फार्मूले में व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 0 देन यू गेट द फेज डिफरेंस एज वेल एज पाथ डिफरेंस एट द सेंट्रल ब्राइट। तो सेंटर ब्राइट के लिए क्या रखना है आपको, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 रखना है। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पाई कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा x भी कितना आ जाएगा आपका, ये दैट इज योर 0 आ जाएगा। इट मीन्स क्या ये कि why the center bright is coming over here, या if anybody ask you that what is the phase difference as well as the path difference at the center bright, so the answer is your phase difference is 0 as well as your path difference is 0। so what we are doing, तो we are doing कि for constructive interference that is your brighter zone is coming, phi is equal to how much, that is your 2n pi, and delta x is equal to how much, that is your n lambda। so for first bright, if anybody asked you what is the phase difference as well as what is the path difference for the first bright, so first brightly what to do, n is equal to 0 is for your center bright, n is equal to 1 is your first bright, n is equal to 2 is your second bright। clear? in this formula if you put the values of n तो n की वैल्यू 1 रखोगे, तो n की वैल्यू जैसे ही 1 रखा तो फेज डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर आपको, दैट इज योर 2 पाई आ गया ये। एंड व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज योर पाथ डिफरेंस इज हाउ मच, व्हिच इज योर लैम्डा। B2 के लिए कोई पूछे तो यू हैव टू पुट n इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज योर 2, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 पाई, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 2 लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली द सेम B1 इज कमिंग बिलो द सेंटर ब्राइट, सेम B2 इज कमिंग बिलो द सेंटर ब्राइट, तो एवरीथिंग विल बी सेम। जो B1 की कंडीशन यहाँ होगी B1 की कंडीशन यहाँ पर होगी, मतलब n इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, और डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लैम्डा। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये दैट इज 4 पाई, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 2 लैम्डा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आप ये बता सकते हो कि जितने भी टाइप्स की ब्राइट्स मिल रही हैं उनके लिए आपका क्या पाथ डिफरेंस है और क्या फेज डिफरेंस है। बस इतना जरूर ध्यान रखना बच्चा कि जैसे फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 रख दो, फर्स्ट का मतलब 1, फर्स्ट ब्राइट में n की वैल्यू 1, सेकंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू 2, इधर के फॉर्मूले में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात समझ में आ रही है? अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान सुनो। यहाँ सेंटर ब्राइट कब बनी होगी, यहाँ सेंटर ब्राइट कब बनी होगी, जब S1 से निकली गई वेव और S2 से निकलने वाली वेव ने यहाँ सुपर इम्पोज किया होगा, और वो सुपर इम्पोज में या तो उनका क्रस्ट से क्रस्ट मिला होगा या तो ट्रफ से ट्रफ मिला होगा। ये बात समझ में, ध्यान समझना। ये इस पॉइंट पर सेंटर ब्राइट क्यों बन रहा, इसका मतलब S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव ने इस पॉइंट पर क्या किया होगा, सुपर इम्पोज किया होगा। और किस तरीके से सुपर इम्पोज किया होगा, क्योंकि ब्राइटर पॉइंट है तो सुपर इम्पोज किस तरीके से किया होगा कि एक का क्रस्ट दूसरे के किससे मिला होगा, या तो क्रस्ट से या तो ट्रफ से मिला होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना रहा होगा, 0 डिग्री। चलो ठीक है, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, फेज डिफरेंस कितना होता है 0 डिग्री। पाथ डिफरेंस कितना है, तो भाई S1 की वेव यहाँ से यहाँ तक कितना चल रही डिस्टेंस, ये वाली। S2 की वेव यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस चल रही, ये वाली।
अब दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर सेंटर राइट है, तो जितना वेव ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ही वेव ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दोनों के वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 0। पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा क्या होता है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन। जैसे फर्स्ट ब्राइट के लिए देख लो आप, फर्स्ट ब्राइट कब मिला होगा आपका? ये जब S1 से निकली गई वेव यहाँ पहुंची होगी और S2 से निकली गई वेव कैसी होगी आपकी? ये यहाँ पर पहुंचकर क्या की होंगी आपकी? सुपर इम्पोज की होंगी। अब सुपर इम्पोज किस तरीके से किया होगा इन्होंने? तो सुपर इम्पोज इस तरीके से हुआ होगा कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ या एक का ट्रप दूसरे के ट्रप के साथ मिला होगा, तो इस तरीके से सुपर इम्पोज हुआ। तो उस कंडीशन में फेज डिफरेंस कितना हो गया? तो फेज डिफरेंस फार्मूला से कितना आ गया? 2 पाई, और पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपका? लैम्डा आ गया। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा क्यों आया? क्यों नहीं 0 आया पाथ डिफरेंस? तो रीजन ये है, अगर अपन यहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दें, बस समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो यहां पर क्या हो गया कि ये और ये डिस्टेंस कैसी हो गई? इक्वल हो गई। पाथ डिफरेंस 0 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि S1 वाली वेव जो वहां तक जा रही है और S2 वाली जो वेव वहां तक जा रही है, दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल में क्या फर्क है? बिगर माइनस स्मॉलर करोगे तो कुछ एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगी। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आपकी? ये लैम्डा। ये बात समझ में आ रही है? तो B1 पर पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि जब B1 पर S1 से कोई वेव पहुंचेगी, B1 पर ही S2 से कोई वेव पहुंचेगी, और जब दोनों वेव मीडियम में जाकर सुपर इम्पोज करेगी तो S2 वाले ने ज्यादा चला, S1 वाले ने कम चला, तो दोनों के चलने के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? दैट इज सेड टू बी द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट B1। ये बात समझ में आ रही है? और कितना होगा आपका ये? तो पाथ डिफरेंस कितना लिखोगे? पाथ डिफरेंस जैसे यहाँ का लिखना है तो S2 B1 माइनस कितना लिखोगे आप? S1 B1। जो भी आ जाए इसी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर आपकी? लैम्डा आ रही है, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पर? लैम्डा ही। तो आई होप जिन जिन पॉइंट्स में मैंने पाथ डिफरेंस लिखा, तो यू हैव टू फील नाउ कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस। क्लियर? पाथ डिफरेंस होता क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया लग रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब बारी है किसके सब कुछ लिखने की आपकी? ये डार्कर वाले की। यहाँ पर मिल रहा फर्स्ट डार्कर। ध्यान समझना है, ध्यान समझना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से, और पूरे लास्ट तक इंटरफ्रेंस में काम आएगी। सुनो ध्यान से। जब फर्स्ट ब्राइट की बात करते हैं तो उसके फॉर्मूले में इनकी वैल्यू 1 रखते हैं, लेकिन जब फर्स्ट डार्क की बात करते हैं, फर्स्ट डार्क की बात करते हैं, तो इसके फॉर्मूले में इनकी वैल्यू 0 रखते हैं। सेकेंड डार्क में इनकी वैल्यू 1 रखें, थर्ड डार्क में इनकी वैल्यू 2 रखें। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट डार्क में एन की वैल्यू कितनी रखते हैं? 0, क्योंकि भाई इसको देखो, इसको एन की वैल्यू 0 में सेंटर ब्राइट मिला, फर्स्ट ब्राइट में इज इक्वल टू 1 रखा, क्योंकि सेंटर ब्राइट भी एक ब्राइट ही है। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन पहला डार्क तो यहाँ मिल रहा है ना D1 पर। जब पहला यहाँ मिल रहा है D1 पर, तो n की वैल्यू कहाँ शुरू हो रही? 0 से, इसलिए n की वैल्यू 0 रखेंगे तो किसकी कंडीशन मिलेगी? फर्स्ट डार्क की। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि डार्कर जोन पे अपन ये, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दोगे आप? 0 रख दोगे, तो डेल्टा फाई कितना निकल के आ जाएगा? पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको? ये पाई। और यहाँ पर जो फेज पाथ डिफरेंस जो निकल के आएगा, फेज डिफरेंस आ गया पाई, और पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर λ/2 हो जाएगा। सिमिलरली D1 के बाद D2 है, तो n इज इक्वल टू कितना रख दोगे आप? ये 1 रख दोगे। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 3 पाई आ जाएगी, और पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? ये 3 λ/2 हो जाएगी। सिमिलरली ऊपर D3 होगा, D4 होगा, D5 होगा, तो किसी का भी होगा। आपके पास ये दो कंडीशंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फ्रॉम दिस कंडीशन यू आर नाउ एबल टू राइट डाउन द phase difference as well as the path difference between of any fringe obtained on the Young's double slit experiment। ये बात समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा हटा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन द डेरिवेटिव portion of the Young's double slit experiment। Clear? After performing its experiment, Young's have performed some derivations regarding their experiment. Clear? So heading is your calculations performed by fringe. Clear? And the first heading inside this one is your distance of central bright from nth bright। Clear? Distance of central bright from nth bright मतलब क्या? ध्यान समझ रही। अब मैं केवल हाफ पोर्शन ड्रॉ करूंगा, ठीक है? सपोज ये स्क्रीन में यहाँ मिला सेंटर ब्राइट, तो ऊपर मिलेगा यहाँ D1, फिर मिलेगा B1, फिर मिलेगा D2, फिर क्या मिलेगा आपका? B2 मिलेगा। नीचे भी सेम पैटर्न मिलेगा। अगर मुझसे कोई कि ये बताओ सेंटर ब्राइट से पहली ब्राइट की डिस्टेंस कितनी, सेंटर ब्राइट से दूसरी ब्राइट की डिस्टेंस कितनी, सेंटर ब्राइट से nth ब्राइट की डिस्टेंस कितनी? ध्यान समझना, ये सेंटर ब्राइट से nth ब्राइट की डिस्टेंस कितनी, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी,
सेंटर ब्राइट से सेकंड डार्क डिस्टेंस कितनी, सेंटर ब्राइट से nth डार्क की डिस्टेंस कितनी, ये पूछ सकता है ना हमसे। भाई अगर ये फ्रिंज मिल रही है तो इनके बीच में डिस्टेंसेस भी यंग्स ने क्या किया, कैलकुलेट किया, वो आराम से बता सकता है ये कि सेंटर ब्राइट और पहली ब्राइट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, सेंटर ब्राइट और पहली डार्क के बीच में कितनी डिस्टेंस है। इन सारे कंफ्यूजन्स को क्या किया आपका यंग्स ने दूर किया और इन सारे कंफ्यूजन्स को उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट भी किया। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको क्या किया इन्होंने, कैलकुलेट किया कि भाई सेंटर ब्राइट से किस तरीके से एनथ डार्क और एनथ ब्राइट इस तरीके से फ्रिंजेस आपकी ये मिल रही, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमें चाहिए ये कि हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रॉम एनथ फ्रिंज, क्लियर। तो यहाँ पर एनथ फ्रिंज जो लिखा है वो एनथ डार्क फ्रिंज भी हो सकती है और एनथ ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है। फ्रिंज स्क्रीन पर कब बनेगी, जब S1 से जाने वाली वेव S2 पर जाने वाली वेव के साथ क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। अगर यहाँ क्रश से क्रश सुपर इम्पोज हुआ तो ब्राइट, ट्रफ से ट्रफ हुआ तो ब्राइट फ्रिंज, और अगर यहाँ पर आपका ये दैट इज और सिंपल सुपर इम्पोजिशन हुआ दैट इज जो क्रस्ट से ट्रफ का हुआ तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। सपोज P पर हमारी एनथ फ्रिंज बन रही तो P तक अपन ने रेस को इस तरीके से भेज दिया। जो एनथ फ्रिंज P पर बन रही है सपोज उसकी जो C से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर xn। xn इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ब्राइट एंड एनथ फ्रिंज है आपका ये। कैपिटल D क्या है आपकी है, जिस प्लेन पर आपने स्मॉल ओपनिंग की है दैट इज योर स्लिट, जिस प्लेन पर आपने स्मॉल ओपनिंग की उस प्लेन से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पर ये कैपिटल D है। और स्मॉल d क्या है आपकी, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, स्मॉल d है। और यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी यहाँ पर आपकी है, लैम्डा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो हमें ये निकालना है कि भाई सेंट्रल ब्राइट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, दैट इज योर xn। हमें यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे रहती है कि भाई S2 से स्क्रीन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करो और S1 से भी स्क्रीन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल ब्राइट है ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये पूरा D है तो ये कितना हो गया, D/2, और ये भी कितना हो गया, D/2 हो गया। ये बात समझ में आ रहा, मतलब अगर ये इतना पोर्शन D/2 है तो ये पोर्शन कितना हो गया आपका यहाँ से ये, दैट इज जो D/2, और ये पोर्शन भी कितना हो गया यहाँ से आपका ये D/2 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। तो इन पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये सेंटर ब्राइट का नाम C है, इसका नाम Q दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं यहाँ पर, ये R दे देते हैं। अब यहाँ से कोई पूछे कि भाई P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखो ये P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये, तो भाई P और C के बीच में डिस्टेंस xn, Q और C के बीच में डिस्टेंस D/2, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस मिलेगा ये। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल आएगी यहाँ से आपकी ये xn माइनस कितनी आ जाएगी आपकी ये, दैट इज योर D/2 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से अगर कोई ये भी पूछ सकता है आपसे ये कि यहाँ से जो ये वाई डिस्टेंस है ये कितनी हो गई पूरी है P से लेकर R तक की डिस्टेंस, तो xn में D/2 क्या कर दोगे आप, ये ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, xn प्लस D/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये सारी डिस्टेंसेस आपको क्लियर हो पा रही है क्या, ये डन। कुछ पहले से एज्यूम डिस्टेंस थी दैट इज योर xn थी, कैपिटल D थी, स्मॉल d थी, वेवलेंथ कितनी थी आपकी, लैम्डा थी, और कुछ डिस्टेंसेस अपन ने बाद में क्या किए, एज्यूम किए। यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, SPQ। तो इन ट्रायंगल S1PQ, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये S1P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये PQ स्क्वायर प्लस S1Q स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर xn माइनस कितनी है आपकी D/2 होल स्क्वायर, और प्लस S1Q की वैल्यू कितनी है आपकी, तो S1Q की वैल्यू कितनी, कैपिटल D, तो प्लस कितना हो गया आपका ये कैपिटल D होल स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये कोई समस्या है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो एक ट्रायंगल और दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल S2PR, क्लियर। तो इन ट्रायंगल क्या लिखा मैंने यहाँ पर ये, दैट इज योर S2PR। इस ट्रायंगल में S2P हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो क्या लिख सकते हो आप, ये S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो आप, ये S2R पूरा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर PR स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, PR है, xn प्लस कितना है आपका यहाँ पर ये D/2 है टू द होल स्क्वायर, और प्लस S2R की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज योर कैपिटल D, तो प्लस कितना हो गया आपका ये कैपिटल D स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से,
कि अपने को ये जो डेरिवेशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं, इस डेरिवेशन का मेन पर्पस क्या है। इस डेरिवेशन का मेन पर्पस ये है कि किसी एक nth फ्रिंज की डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से बताने की डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस को कितना एज्यूम किया अपन ने यहाँ पर ये xn एज्यूम किया। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो हमें अब यहाँ पे या तो ये जो nth फ्रिंज है यहाँ पर, ये कौन सी फ्रिंज है यहाँ पर आपकी, ये दैट इज योर nth फ्रिंज। ये डार्क भी हो सकती है और ब्राइट भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि nth फ्रिंज के पास जो S1 से वेव जा रही है और जो S2 से वेव जा रही है, इसका पाथ डिफरेंस कितना। ये बात समझ में आ रहा है? अगर इसका पाथ डिफरेंस n लैम्डा की इक्वल कर देंगे तो ये nth ब्राइट हो जाएगी, और अगर इसी का पाथ डिफरेंस 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर देंगे तो ये डार्क फ्रिंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये पोर्शन का काम हो चुका है डिस्टेंसेस का, तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। डेरिवेशन को आगे क्या करते हैं आप, ये कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर क्या आपकी सेकेंड। ये बात समझ में आ रहा है? तो P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, तो डेरिवेशन के पहले लिखा जाता है ये कि यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ ये दैट इज योर पाथ डिफरेंस, दैट इज योर डेल्टा x। कितना है P पॉइंट तक, तो P पॉइंट तक में इसने कितना चला S2P और इसने कितना चला -S1P। ये बात समझ में आ रही भाई? ये ज्यादा चल रहा है, ये कम चल रहा, तो इन दोनों के पाथ का जो डिफरेंस होगा P पॉइंट पर क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो सपोज पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है। It is said to be your equation number 1, that is your equation 2 and that is your equation number 3। तो हमें S2P - S1P चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 से आपने S1P की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 3 से आपने S2P की वैल्यू निकाली, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये दैट इज योर ऑन डूइंग, दैट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आप, ये दैट इज योर सेकेंड कर रहा हूँ। तो जब थर्ड माइनस सेकेंड करोगे तो हो जाएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। ये हो जाएगा S2P होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका ये S1P होल स्क्वायर। तो S2P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये तो ये वैल्यू है आपकी यहाँ पर ये दैट इज योर xn प्लस कितना है आपका ये d/2 होल स्क्वायर माइनस प्लस कैपिटल D स्क्वायर। क्लियर? और S1P की वैल्यू कितनी है, तो माइनस साइन लगाकर इसकी वैल्यू कितनी है आपकी है xn - d/2 होल स्क्वायर प्लस कितना है आपका ये D स्क्वायर। जब माइनस साइन ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई xn प्लस कितनी आ गई आपकी ये d/2 होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया आपका ये xn माइनस कितना आ गया d/2 होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये xn स्क्वायर प्लस d/2 टू द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा प्लस 2a इंटू कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगी माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, ये कितना हो जाना है आपका ये दैट इज योर a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका ये b स्क्वायर माइनस 2a और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये b हो जाएगी। जब माइनस साइन ओपन करोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो गया आपके, ये कैंसिल आउट हो गए। सो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी दैट इज योर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर की, ये जो वैल्यूज निकल के आ रही थी, ये वैल्यूज कितनी आ रही 2xn इंटू d/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, xn इंटू d माइनस माइनस प्लस xn इंटू d, ये कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 2xn इंटू कितना आ गया आपका ये d आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी बड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है आपको ये दैट इज योर यू कैन राइट इट इज योर S2P माइनस S1P इन वन ब्रैकेट एंड S2P प्लस S1P इन द सेकेंड ब्रैकेट एंड दैट इज इक्वल टू 2xn इंटू कितना हो गया d हो गया। And in place of S2P minus S1P, you can write delta x because delta x said to be the path difference. So यहाँ से delta x into कितना आ गया आपका ये S2P plus S1 कितना आ जाएगा P आ जाएगा is equal to 2xn into क्या हो जाना है इसको ये D हो जाना है। तो यहाँ से जो डेल्टा x आ रहा है आपका ये निकल गई है, उस डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2xn D डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये S2P प्लस कितना हो जाएगा आपका ये S1
पी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2xn स्मॉल डी डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका ये S2P माई प्लस कितना आ रहा है यहाँ पर आपका ये S1P आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपको ये कि एक फिजिक्स का सबसे घटिया अजम्पशन क्या करना अपने को यहाँ पर ये अप्लाई करना। ये बात समझ में आ रही है? जो सबसे घटिया अजम्पशन है पूरी फिजिक्स का यहाँ पर अप्लाई होगा, और आप भी कहोगे कि इस अजम्पशन के पीछे लॉजिक क्या है, इसको तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करूंगा मैं तो आपको समझ में आएगा कि ये अजम्पशन ऐसा क्यों लिया है मैंने। ये बात समझ में आ रही है? सो इतनी चीज़ें हटा देते हैं, अपन यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक, अब अजम्पशन क्या करना अपने को एज्यूम करना है। तो यहाँ लिखा जाता है कि लेट S1P इज इक्वलेंट टू S2P इज इक्वलेंट टू D। ठीक, ध्यान समझना, अजम्पशन क्या कहता है ये कि सपोज S1P और S2P इक्वल है, nth फ्रिंज पर इक्वल है, और दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो गई है? D के इक्वल, इसके इक्वल हो गई। ये बात समझ में आ रही है? बस इस अजम्पशन को अभी आप केवल डाइजेस्ट करो, केवल और केवल क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करना है। फिर मैं तरीके से बताऊंगा कि अजम्पशन इस तरह से क्यों लिया गया, और आपको लगेगा भी कि हाँ जो अजम्पशन था वो बिल्कुल सही यूज हुआ। ठीक, अजम्पशन क्या है आपका ये कि S1P इज इक्वल टू S2P और विच इज इक्वल टू क्या हो गया D। मतलब S1P की जगह D लिख सकते हो और S2P की जगह क्या लिख सकते हो, आप D लिख सकते हो। सो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा आपका ये, दैट इज योर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी है, दैट इज योर 2xn D डिवाइड बाई कैपिटल D प्लस कैपिटल D। तो ये नीचे हो जाएगा 2D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xn D डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया xn D डिवाइड बाई कैपिटल D आ गया। इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है डेल्टा x, ये कितना आ रहा है आपका ये, दैट इज योर xn D डिवाइड बाई कितना आ रहा है कैपिटल D। तो यहाँ से xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डेल्टा x कैपिटल D डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी आपकी ये स्मॉल d, और xn क्या है यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम क्या है आपकी है सेंट्रल फ्रिंज, तो डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज ये हो जाएगी ये। तो अगर अब यहाँ से एक केस बनाया जाए कि दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, क्लियर? मतलब अगर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होती, अगर यहाँ nth ब्राइट फ्रिंज होती, तो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका ये, दैट इज योर n लैम्डा। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह कितना रख दोगे आप, n लैम्डा रख दोगे। तो xn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये n लैम्डा d डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी आपकी ये स्मॉल d हो जाएगा ये। सो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट टू एनी ब्राइट फ्रिंज। जैसे यहाँ पर क्या है आपको ये ध्यान सुनिए, दैट इज योर सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, और ये कैसी है आपकी थर्ड ब्राइट। कोई पूछे भाई सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस कितनी, तो सेंट्रल से nth ब्राइट की डिस्टेंस ये, फर्स्ट ब्राइट के मतलब n की वैल्यू कितनी रख दोगे 1, तो n की वैल्यू 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d। क्लियर? कोई पूछे सेंट्रल ब्राइट से सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस कितनी है, तो n की जगह कितना रख दोगे 2 रख दोगे, तो ये कितना आ जाएगा ये 2 लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d। कोई पूछे सेंटर ब्राइट से थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर आपकी है, तो n की जगह 3 रख दोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 3 लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d। अब यहाँ पर देखो ये सेंटर ब्राइट से पहली ब्राइट की डिस्टेंस ये है, सेंटर ब्राइट से दूसरे ब्राइट की डिस्टेंस ये है। अगर कोई पूछे पहले और दूसरे के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो दिस माइनस दिस। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है xn इज इक्वल टू n लैम्डा d डिवाइड बाई d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द डिस्टेंस ऑफ ब्राइटर फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस फार्मूले की तो बिल्कुल चांदी रहती है। ये फार्मूला लगभग हर जगह क्या होता है आपका ये अप्लाई होता है। ये बात समझ में आ रही है? अपन ने क्या किया, अपन ने जनरल पार्ट डिफरेंस निकाल दी कि भाई जनरली अगर यहाँ पर nth फ्रिंज होगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ब्राइट से क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। अब डेल्टा एक्स डिपेंड करता है, अगर यहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी तो यहाँ डेल्टा एक्स किसका होगा, ब्राइटर का, ब्राइटर मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और अगर यहाँ डार्क फ्रिंज हुई तो यहाँ किसका रखना पड़ेगा, डार्कर रखना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है कुछ ऐसी ही आपकी है, इसी क्या की है कि दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ nth डार्क
फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। मतलब अगर ये फ्रिंज डार्क हो जाती तो डार्क के लिए हमें पता है कि डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 2n + 1 इंटू वॉट, दैट इज योर λ/2 होती है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसी फॉर्मूले में डेल्टा एस जगह कितना रख दोगे आप, ये तो xn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2n + 1 इंटू कितना हो जाएगा λ/2 d डिवाइड बाई कितना हो जाएगा स्मॉल d। इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया 2n + 1 कैपिटल D डिवाइड बाई कितना आ गया आपका, ये दैट इज योर 2d आ गया। एंड दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रॉम एनी डार्क। ये बात समझ में आ रहा है। ये फ्रॉम एनी डार्क का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। ये अब ये पूरा डायग्राम में इस तरह से हटा रहा हूँ, यहाँ पर इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से कि जैसे यहाँ पर कैसा है आपके सेंटर ब्राइट, कोई पूछे सेंटर ब्राइट से पहली डार्क और दूसरी डार्क और तीसरी डार्क के बीच की डिस्टेंस कितनी, ये बात समझ में आ रही है। तो सेंटर ब्राइट से पहली डार्क चाहिए ये डिस्टेंस, सेंटर ब्राइट से दूसरी डार्क ये डिस्टेंस, सेंटर ब्राइट से तीसरी डार्क ये डिस्टेंस चाहिए। और डार्क के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ये, तो यहाँ पर क्या है कि 2n + 1 इंटू डी डिवाइड बाई कितना आपका ये 2d है। तो जब आपको फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस चाहिए ना, किसकी, सेंटर ब्राइट से कौन से डार्क की, फर्स्ट डार्क की। तो डार्क में जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट डार्क के लिए हमेशा इनकी वैल्यू 0 रखते हैं। और ये यहाँ पर सबसे कंसंट्रेट करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये यहीं पर होती है। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क के लिए n की वैल्यू 0 रखोगे, क्लियर। मतलब d1 के लिए n इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा, d2 के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा और d3 के लिए n इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। जबकि ब्राइट में वो हिसाब किताब नहीं था। फर्स्ट ब्राइट के लिए n इज इक्वल टू 1, सेकंड ब्राइट के लिए n इज इक्वल टू 2 एंड फॉर थर्ड ब्राइट n इज इक्वल टू 3। जो ब्राइट है उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो on putting the distance, on getting the distance of center right from the first dark, you have to put n is equal to 0, and when you put n is equal to 0, you will get d divide by कितना हो जाएगा आपका 2d हो जाएगी। and for second right n is equal to 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3d डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, ये 2d आ जाएगी। and for this one n is equal to 2 रखोगे, then you get the distance between center right and the third arc, तो you will get आपका ये 5d डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2d हो जाएगा। 5d लैम्डा भी आएगा साथ। ये बात समझ में आ रहा है। ये लैम्डा कहाँ खा गए अपन, ये लैम्डा है ना यहाँ पर, ये तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये लैम्डा d हो जाएगा, ठीक। सो यू हैव टू मेमोराइज 2 फॉर्मूला, दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सेंटर ब्राइट इज हाउ मच, दैट इज योर n लैम्डा बाई d, एंड डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द nth डार्क फ्रॉम द सेंटर ब्राइट इज योर दिस वन। ये बात समझ में आ रहा है। ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन।